Good morning, dear students. Today I am going to explain in Science Chapter 4. Name is Materials, Metals and Non-Metals. So, as the chapter says, I am going to explain about metals and non-metals. Uh, these are known as elements. The total number of elements, basic elements, are 118. Out of 118, number of metals is 92, number of non-metal is 20, and number of semi-metals or metalloids is 8. Uh, Even in recent years, some new elements have also been discovered, but I'm talking about the old number of elements, that is 118. Metals and non-metals can be distinguished on the basis of their physical and chemical properties. The properties of metals and non-metals, there are two types of properties. One is physical properties and the other one is chemical properties. In this chapter, you are going to learn about the properties of metals and non-metals only. Various types of metals and non-metals. The two types of properties: physical properties and chemical properties. In physical properties, we will discuss about their appearance, hardness, conductivity, ductility, malleability. All these properties I'm going to explain one by one. And in chemical properties, I'm going to explain how do the metals and non-metals react with other elements or with other substances. So though you don't have to study the symbols of metals and non-metals, but I will tell you at least 20 elements, their name and symbols. After discussing this physical properties, I'm going to explain that. So first I'm going to explain about physical properties of metals and नॉन मेटल्स. थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो आपको होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, लाइक आयरन, copper, silver, gold, aluminium. These are metals, while in category of non-metals comes coal, sulfur, oxygen, nitrogen. जितनी gases हैं, mostly those are non-metals. If I want to give examples of metals, I am writing here metals. मैं चलो मैं नाम लिख देती हूँ. Metals are iron, aluminium, I'm writing short name, aluminium, copper, silver, gold, platinum, etc. Non-metals. Okay, you must be wondering कि ये semi metals और metalloids क्या हैं. Non-metals are generally gases, as I said: oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon is solid, it's not gas, carbon, sulfur, it is also solid, sulfur, etc. Okay, when I say oxygen, hydrogen, nitrogen, etc. are gases, all gases are non-metals, then generally students say, ma'am, carbon dioxide also. No, carbon dioxide is not a non-metal. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्चुअली कंपाउंड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये एलिमेंट नहीं है, इट इज़ अ कंपाउंड. ओके, मेटेलॉइड्स, आई सेड मेटेलॉइड्स क्या होता है? मेटेलॉइड्स, और वी कॉल इट सेमी मेटल्स. मेटेलॉइड्स आर द elements which has properties of metals and non metals both, जिसमें और इन बिटवीन उनके बीच की प्रॉपर्टीज़ होती है मेटेलॉइड्स में, सेमी मेटल्स में. एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, etc. So now we are going to discuss about physical properties. I just given some examples of metals, non-metals and metalloids here. Now going to discuss about physical properties of metals and non-metals. One by one. Appearance or shiny appearance.
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अपीयरेंस कैसे होते हैं? विल दे लुक शाइनी और दे लुक डल? सो जनरली मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस. कैसा होता है? मेटल्स हैव शाइनी appearance and that's why they are used in jewelry, because you can see this is the ring, this is metal gold, and it is used in jewelry because of this shiny characteristics. देखने में चमकीला है, and that's why we are using in jewelry. So metals have shiny appearance. You can see silver, gold, platinum, etc. Non-metals have generally dull appearance. Non-metals कैसे होते हैं? Metals have dull appearance. Example: coal, that have dull appearance, sulfur, etc. So first property is appearance. How do they look like? Second is hardness. Metals are generally hard. You must have seen. Can you break iron? Can you break gold or silver or copper? No, you cannot break it. It is hard. Metals are hard generally. Exceptions are also there. Exceptions means generally, जैसे मैंने बताया कि metals शाइनी अपीयरेंस होता है, नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस होता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसा है जो बहुत ब्राइट है. एग्जाम्पल: डायमंड. डायमंड इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है. एंड कोल, दैट इज़ कोयला, दैट इज़ ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. बट लुक एट दिस अपीयरेंस. कोल का बिल्कुल डल अपीयरेंस है, बट डायमंड इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट. प्योर डायमंड इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड. तो बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शाइनी अपीयरेंस इट इज़ कॉस्टली. सो देखो, इन जनरल नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? डल होते हैं. बट डायमंड विच इज़ मेड अप ऑफ नॉन मेटल इज़ ब्राइट. सो दैट इज़ एक्सेप्शन. जनरली जैसे होते हैं उसका अपोजिट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन. हार्डनेस. मेटल्स आर जनरली हार्ड. As I said, iron, aluminum, copper, silver, gold, we cannot break it. These are hard. But coal, अगर एक कोयले का छोटा टुकड़ा है, आप उसे बिट करोगे हैमर से, वो टूट जाएगा. It is not that hard. पेंसिल की लीड, that is graphite, again it is form of carbon. तो उसको भी अगर आप, वो तो आपको पता ही, तुरंत ही टूट जाता है, लिखने में ही टूट जाता है. So metals are generally hard. Non metals are generally brittle, जो easily टूट सकता है. नॉन मेटल्स आर generally brittles. Again, exception is there. Diamond, which is a non-metal, is the hardest substance. While there are two metals, gallium and cesium. These are metals. Even sodium. इसको अगर हम स्पेशली हम एग्जांपल देते हैं गैलियम एंड सीजियम का. इफ़ यू कीप इट in your hand, it will melt. It is not that hard. So these are exceptions. Now come to third properties. Malleability. You will heard this name first time, malleability. Malleability is the characteristics of metals due to which it can be beaten into thin sheets. metals को अगर बीट करके thin sheet में बना सकते हैं, that property is known as malleability. This is the characteristics of substance, characteristics of element, characteristics of metals by which metals can be beaten into thin sheets. Now you must have seen aluminum foil, silver foil, which are used on काजू कतली स्वीट्स के ऊपर हम लगाते हैं, लड्डू के ऊपर लगाते हैं. सो कितना थिन होता है.
aluminum foil which we use to pack our food. So even suppose you have a iron nail, if you beat it with hammer, it will flat, उसका shape change हो जाएगा, it will not break. But when you beat a piece of coal, it will break. So it is brittle. उसको हम हैमर से पीट के थिन शीट नहीं बना सकते नॉन मेटल्स को. एज आई सेड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दिज आर गैसेस. कैन यू इमेजिन कि आप उसके थिन शीट बनाओगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो generally metals are malleable. Non-metals are non-malleable. Fourth one, ductility. Malleable is like, once again I said, the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. As I said, suppose आपके पास आयरन नेल है या एल्युमिनियम वायर है या कॉपर वायर है, अगर आप उसे हैमर से बीट करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा. बट अगर आपके पास पीस ऑफ कोल है या सल्फर है, उसे आप हैमर से बीट करोगे तो क्या होगा? इट विल ब्रेक. तो दैट इज नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल. नेक्स्ट पॉइंट इज डक्टिलिटी. Ductility is the property of elements by which they can be drawn into thin wires. Have you seen wires of metals? Yes, you must have seen. Aluminum wires, copper wires, जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स होती है हमारे घर में, सबके अंदर कॉपर की वायरिंग होती है, एल्युमिनियम वायरिंग्स होता है. ऊपर से प्लास्टिक कोटेड रहता है बिकॉज शॉक ना लगे हमें. बट अंदर कौन से वायर्स होते हैं? एल्युमिनियम या कॉपर के. सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. सो जितनी भी मेटल्स हैं, आइदर गोल्ड और सिल्वर और एल्युमिनियम और कॉपर और आयरन, सबके वायर्स बने जा सकते हैं. यू नो व्हाट इज़ द विच मेटल इज़ मोस्ट डक्टाइल? गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स. You will be surprised to know that 1 ग्राम गोल्ड, जस्ट इमेजिन कितना छोटा होता है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है. Obviously the wire will be very thin, but just imagine 2 kilometer long wire can be made by 1 gram gold. How ductile it is. And because of these properties, gold and silver are used in jewelry. आप देख सकते हो कितने कम वेट की भी ज्वेलरी मिलते हैं. ईयर रिंग्स हैं या रिंग्स हैं और नेकलेस है, उसमें कितना फाइन वर्क, कितने पतले पतले वायर से बने होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी. सो we can say metals are generally ductile. Ductile. Again, exceptions will be there. As I said, गैलियम, सीजियम, सोडियम, ये सब मेटल्स हैं, बट इसके वायर्स नहीं बन सकते हैं. एंड दैट्स वाई वॉट वी राइट जनरली मेटल्स आर मेलेबल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. मीन्स नॉन मेटल्स के आप वायर्स नहीं बना सकते हो. ओके. देन फिफ्थ वन इज गुड कंडक्टर ऑफ electricity and heat. Metals are good conductor of heat and electricity. Have you seen, आपकी किचन में आपकी मम्मा या सिस्टर जो भी यूज़ करती हैं पैन, कढ़ाई, उसमें जो हैंडल्स होते हैं, आइदर द हैंडल इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुडन. Otherwise, without plastic or wooden handle, will we able to touch the pan? No.
आवर फिंगर विल गेट हर्ट, हमारे फिंगर्स जल जाएंगे. सिमिलरली सो वाई क्यों जल जाएंगे, क्यों नहीं हम पकड़ सकते? बिकॉज जो पैन है, जो कढ़ाई है, दैट इज़ मेड अप ऑफ आइदर मेटल्स और एलॉयज़ के भी होते हैं जैसे स्टील के हैं. तो दिस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मीन्स अगर हमने यहाँ पे हीट किया तो वो धीरे धीरे हीट कंडक्ट करेगा और दूसरे पार्ट तक हीट आ जाएगा. दिस इज नोन एज कंडक्शन ऑफ हीट. Generally, metals are good conductor of heat and electricity. Generally, metals are good conductor of electricity and heat. मैंने हीट के एग्जांपल दिए कि कुकिंग पैन में वुडन या प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं, क्योंकि जो कुकिंग यूटेंसिल्स है दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स और एलॉयज. इलेक्ट्रिसिटी, हैव यू सीन, कोई अगर इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आया है तो वो जो यूज़ करता है, क्या बोलते हैं उसे, स्क्रू ड्राइवर, उसका अंदर में तो मेटल्स होता है बट उसके हैंडल्स किसके होते हैं? प्लास्टिक्स के होते हैं. तो एक सिंपल सा सर्किट अगर हम बनाएं और चेक करें कि वो गुड कंडक्टर है या नहीं है, I'll just show you the diagram. दिस इज़ द सिंपल सर्किट जिसमें एक बैटरी है, एक बल्ब है और वायर से कनेक्टेड है. ये वायर से कनेक्टेड इस सिंपल से सर्किट डायग्राम में बैटरी, बल्ब और कनेक्टिंग वायर्स हैं. नाउ इफ़ यू वांट टू चेक वेदर अ गिवन एलिमेंट इज मेटल्स और नॉन मेटल्स, यू जस्ट कीप इट हियर. यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ अ आयरन नेल. अगर मैं यहाँ पे आयरन नेल लगाऊंगी द बल्ब विल ग्लो. इफ़ आई कीप सपोज अ मैच स्टिक विच इज़ मेड अप ऑफ वुड, तो ये दिस बल्ब विल नॉट ग्लो. तो वो नॉन मेटल नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है. सो इफ़ यू वांट टू चेक whether the given material is metal or non-metal, you can keep that material here. कॉपर के वायर ले लो, आयरन ले लो, आयरन नेल्स ले लो, देन सिल्वर की रिंग ले लो, कुछ भी, एनी मेटल्स विच यू फाइंड इन योर होम. कॉपर के वेसल्स ले लो, पूजा में हम बहुत सारे यूज़ करते हैं कॉपर ब्रास की वेसल्स, वो आप यहाँ पे रख दो. सो इफ़ द बल्ब ग्लो द गिवन मटेरियल विल बी good conductor of electricity, and if the bulb does not glow then the given material will be poor conductor of electricity. So generally metals are good conductor of electricity and heat, and non-metals are poor conductor of heat and electricity. Again, exception is there. ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल की लीड होती है, दैट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जनरली एज आई से, जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं. जितने भी नॉन मेटल्स हैं दिस आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. बट exception is still there. Graphite, which is a form of carbon, which is a non-metal, is a good conductor of electricity. Now we come to next properties, sonorous. Have you हर्ड, अगर कोई मेटल की चीज़ हमसे हाथ से छूट जाती है और ज़मीन पे गिरता है तो एक स्ट्राइकिंग साउंड होता है. बट अगर कोई नॉन मेटल की चीज़ गिरती है लाइक कोल के पीसेस या वुडन पीसेस, तो ये उसमें वो साउंड नहीं होता है. सो यू मस्ट हैव हर्ड, जो बेल है पूजा के घर में रखते हैं या स्कूल की बेल है, वो किसकी बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है. वाई? बिकॉज दिस थिंग्स produces a ringing sound when we struck them hard. Sonorous is the property of metal by which they produces
they produce ringing sound. Generally, metals are sonorous and non-metals are non-sonorous. Generally, metals are sonorous and non-metals are non-sonorous. So these are the basic properties of metals and non-metal. What we have discussed appearance, shiny appearance and dull appearance. Metals have shiny appearance, non-metals have dull appearance. Then hardness, metals are generally hard, non-metals are generally soft. Then malleability and ductility, metals are generally malleable, metals are generally ductile, non-metals are generally non-malleable and non-ductile. Metals are good conductor of heat and electricity, non-metals are bad conductor of heat and electricity. Sonorous, metals are generally sonorous, non-metals are non-sonorous. Other than these properties, there are some properties which I'm just going to explain in short. Uh, density, density, melting point and boiling point. Metals have high density. Density, you must have heaviness. So generally metals have more density compared to non-metal. Generally metals boiling point and melting points are quite higher than non-metals. So these are the physical properties which I have discussed. Just make a tabular format. You can write the physical properties. Just make a table, write here properties, all the properties name, write here metals, write here non-metals, whether they show this property yes or no. ऐसे करके आप एक टेबल बनाओगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का. टेबल बना के आप गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे. देन कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Chemical properties of metals and non-metals. As I had said कि मैं जितने भी metals and non-metals हैं उसकी नाम लिखना चाहूँगी. You should also remember, though it is not given in your syllabus, but it's better for you to remember the symbols. I'm going to write about 20 elements, their name and their symbol. Please remember this. The elements are hydrogen. This is name of element and this is here symbol. हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं. हीलियम He, लिथियम Li, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन, कार्बन को C से, कार्बन देन नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, टिन, टिन इज आर्गन नहीं, tin is neon, Ne, then 11 सोडियम. सोडियम का सिंबल SO नहीं होके Ne है. एक्चुअली ये ग्रीक नेम पे है जिसका सोडियम को ग्रीक में नेट्रियम कहते हैं और नेट्रियम के फर्स्ट 2 लेटर्स लिए गए हैं. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Sodium, then magnesium, aluminium, magnesium का Mg, aluminium
that is Al. 14 is silicon. Silicon is a non-metal. सिलिकॉन का है Si. Then phosphorus, this is P. Then sulfur is S. Then chlorine Cl. 18 argon. Argon is a gas, inert gas we call it, argon. आर्गन. ये है पोटेशियम. पोटेशियम का के होता है. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्रीक नेम. 20 इज कैल्शियम. Ca. अदर देन दिस मैं कुछ मेटल्स के नाम यहाँ पे लिख रही हूँ. आयरन का Fe. देन सिल्वर का Ag. गोल्ड का Au. प्लैटिनम Pt. दिस आर, इसमें से मैं एक बताती हूँ जो मेटल्स हैं वो है लिथियम, बेरिलियम. देन ये सब तो नॉन मेटल्स आ गए. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देन पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, silver, gold, platinum. These are metals. And non-metals are hydrogen, helium. Then boron is semi-metal. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. ये सारे non-metals हैं. Phosphorus is a non-metal. Sulfur is a non-metal. Chlorine is a non-metal. Argon is a non-metal. So basic ये अगर आप याद रखोगे तो आगे अगर मैं केमिकल रिएक्शंस लिखूंगी तो उसमें आपको इजी हो जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट chemical properties of metals and non-metal. What do we mean about chemical properties? In chemical properties we are going to discuss about how metals and non-metals react with other substance like water, oxygen, like acid, base, etc. And what type of reactions they do, what they produce. So these things we are going to discuss one by one. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन किसके साथ? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ऑल ऑफ यू नो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, बहुत सारे जनरली मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल्स क्या बनाते हैं? मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड. व्हाट दे फॉर्म? मेटेलिक ऑक्साइड. एग्जाम्पल, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम का. मैग्नीशियम, नाउ आई कैन यूज़ द सिम्बॉल, बट आपकी बुक में ज़रूरी नहीं है कि आप सिम्बॉल में लिखो, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. कुछ लोगों की बुक में देखो, एनसीईआरटी में रिएक्शंस नहीं है, बट कोर्डोवा या अदर बुक्स में उसमें सिम्बॉल के साथ रिएक्शन है, तो मैं वो दोनों चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे. ये मैग्नीशियम का सिंबल Mg, आपने देखा मैंने पहले लिखा हुआ मैग्नीशियम का सिंबल Mg, और ऑक्सीजन का O होता है, बट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम O2 लिखते हैं. इट फॉर्म्स MgO. और अगर इसे बैलेंस करना है, बैलेंसिंग अभी आप क्लास 10 में सीखोगे, बट अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा. So magnesium, which is a metal, reacts with oxygen and forms magnesium oxide, which is a metallic oxide. Similarly, iron plus oxygen gives iron oxide, which is a metallic oxide. आयरन का सिंबल Fe होता है, ऑक्सीजन होता है O2, ये बनाता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड. यहाँ पे 2 कर दो,
यहाँ पे 3 2 नहीं, यहाँ 4 हो जाएगा, 3 2 सा 6 और ये हो जाएगा आपका 4। ये आयरन ऑक्साइड बन गया। यू मस्ट हैव सीन आयरन ऑक्साइड, यू मस्ट हैव सीन आयरन रस्ट विच इज़ ए फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। रस्ट कैसे बनता है? ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और वाटर के साथ भी, मीन्स मॉइस्ट एयर अगर है आयरन के कांटेक्ट में, देन इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देती हूँ आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इट गिव्स रस्ट। इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा? रस्ट, या हम उसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड विच इज़ ए मेटेलिक ऑक्साइड। नो, ये जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में कि एक टेस्ट ट्यूब में थोड़े से रस्ट निकालो। कोई भी रस्ट आपके घर में, रेलिंग हो, क्या बोलते हैं उसे, बालकनी के रेलिंग में या रॉड कहीं पे हो, उसमें डेफिनेटली रस्ट लग जाता अगर आयरन का है तो। उसमें से आप थोड़ा सा 1 स्पून स्क्रैप करके निकालो और एक टेस्ट ट्यूब में डालो उस रस्ट को, थोड़ा सा पानी डालो और उससे उसका सॉल्यूशन बना लो। एक एक्टिविटी दी हुई है, आई जस्ट शो इट टू यू एवरीवन। दिस इज़ द एक्टिविटी, इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक कि जो रस्ट फॉर्म होता है आयरन का, उसका नेचर कैसा है, बेसिक है या एसिडिक है। दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब। इसमें आपने आयरन रस्ट निकाला और थोड़ा सा वाटर डाला और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और इस सॉल्यूशन में जब हम 2 पेपर डालते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, दिस रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर के बारे में आप 7th में भी पढ़ चुके हो एसिड बेस चैप्टर में। तो जब हम इसमें इस रस्ट सॉल्यूशन में या रस्ट सस्पेंशन में जब हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं, दिस रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, दैट मीन दिस सॉल्यूशन इज बेसिक। अगर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, बट रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक्स। दिस metallic oxides are generally basic. You will study in higher classes that there are some metallic oxides which are both acid and basic, but I'm not going to explain that in detail. In general, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। बेसिक मीन्स उसका जो नेचर है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बेस की तरह है। इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। नाउ वन मोर एग्जांपल इज